بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا وظیفہ۔ محرم کی 9-10 کو یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی، ہر جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ اگر آپ غم پریشانیوں سے تھک چکے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام غم پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اولاد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے وہ دور ہو جائے، تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہے۔ محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہے۔ چونکہ اس ماہ مقدس میں قتل حرام ہے، اس لیے یہ محرم کہلاتا ہے۔ اس میں عشرہ کے دن کا بہت رتبہ ہے۔ عشرہ کا دن یعنی کہ 9-10 محرم کا دن بہت بڑا دن ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس دن تاریخ انسانیت کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت حسن شہید ہوئے تھے، حضرت حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی سے اترے اور شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار مرو گلزار ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ حضرت امام حسین نے مرتبہ شہادت حاصل کیا۔ قیامت اسی دن آئے گی۔ پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی، یعنی کہ 10 محرم کو پہلی بارش نازل ہوئی دنیا میں۔ قلم کو پیدا کیا، آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا کیا۔ عشرہ کے دن کیے جانے والے کام۔ عشرہ ایک معتبر اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن جو بھی نیک کام کیا جائے گا اس کا بڑا اثر و ثواب ہوگا۔ اس عشرے کا معتبر اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن جو بھی نیک کام کیے جائیں گے اس کا بڑا اثر و ثواب ہوگا۔ اس دن میں کیے جانے والے چند نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بڑا ثواب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہے، جو شخص عشرہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا اور تعاون کرنا۔ عشرہ کے روز غسل کرنا۔ عشرہ کے دن غسل بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشرہ کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ دنیا میں صرف ایک بیماری ہے جس کا کوئی حل نہیں، باقی تمام بیماریاں ہیں جس کا حل قرآن مجید ہے، اور وہ ایک بیماری ہے موت۔ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ ازل ہے، یہ انسان پر آنی ہے اس کے ٹائم پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن مقرر کر رکھا ہے کہ اس دن اسے موت آئے گی تو وہ اس دن موت ضرور آئے گی۔ یہ نہیں کہ آپ اس دن کو ٹال سکیں، نہیں۔ عشرے کے دن میں آپ کو بہت سارے وظائف بتاؤں گی، اس میں آپ کو جو بھی آسان سا لگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ 9-10 محرم الحرام کا عمل۔ عشرہ کے دن کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے، یعنی کہ 9-10 محرم کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے۔ اس دن ظہر کی نماز کے بعد 8 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد، 1 بار سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق اور 1 بار سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، پوری سورت پڑھیں۔ اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ پاک نے جو نوافل پڑھے ہیں، اللہ پاک میں نے جو نوافل پڑھے ہیں ان کا ثواب
सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहदाए करबला को पहुंचा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी इज़्ज़त अता करेगा कि इतनी इज़्ज़त अता फरमाएगा कि क़यामत के दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी शफ़ाअत के लिए आगे आगे होंगे। सुभान ताला कि इससे बड़ी क्या बात होगी कि क़यामत के दिन हज़रत इमाम हुसैन आपकी शफ़ाअत करेंगे और आपके आगे आगे होंगे। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तह हुई और फ़िरौन पानी में गर्क हुआ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। फ़िरौन का नाम सुनते ही इंसानों की ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह का लफ्ज़ निकलता है। इसने हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत जुल्म किए। 9-10 मुहर्रमुल हराम का ख़ास वजीफ़ा रिस्क, जादुई रिश्तों का कारोबारी नेज़ हर बंदिश के ख़ात्मे के लिए। मुहर्रमुल हराम साल का पहला महीना है। हदीस मुबारका है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद माह मुहर्रम के नफली रोज़े सबसे अफजल हैं। 9 और 10 तारीख को आयतुल कुर्सी का ये अमल आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई काम रुका हुआ है उसकी नीयत करें। कोई शख्स चाहता है उसके बच्चों की शादी हो जाए लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, वो ये अमल करे। किसी के रिस्क में तंगी है, बंदिश है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, उधार कर्जों से निजात, किसी झूठे मुकदमे में फंसे हैं, आपका मद्दे मुकाबिल ताकतवर है, बीमारी से निजात चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, नेज़ कोई भी आपकी दिली मुराद हो उसको पूरा करना चाहते हैं, कोई भी नेक दिली मुराद हो उसको पूरा करना चाहते हैं। अमल ये है, 9 मुहर्रम को नमाज असर के बाद नमाज असर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियानी अपने लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए दुआ करें। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। यानी कि असर की नमाज में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़, वैसे तो 4 फ़र्ज़ होते हैं पढ़ने, मगर अगर आप 4 सुन्नत के बीच में यानी कि 4 फ़र्ज़ से पहले अपने उम्मत मोहम्मद के लिए दुआ मांगेंगी, उम्मत के लिए दुआ मांगेंगी। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुरूद पाक नमाज वाला 21 मरतबा आयतुल कुर्सी 129, 41 या 313 बार पढ़ना। जितना गुड़ उतना मीठा पढ़ें, यानी कि आप जितने अच्छे तरीके से खुदा को याद करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और आखिर में दुरूद पाक 21 मरतबा पढ़ना। अल्लाह सब का पढ़ना कबूल करे, आपकी दिली मुराद पूरी फरमाए, आमीन। दोबारा बता देती हूँ, 9 मुहर्रम को नमाज असर के बाद यानी कि नमाज असर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियानी अपने लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए दुआ करें। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुरूद पाक नमाज वाला 21 मरतबा सबसे पहले आप 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आयतुल कुर्सी 129 बार, 41 बार या 313 बार, तीनों में मर्ज़ी है, आप कोई भी पढ़ सकती हैं। 129, 41 या 313 बार पढ़ना है। जितना गुड़ उतना मीठा पड़े। आखिर में दुरूद पाक 21 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह सबका पढ़ना कबूल करे और आपने जो दुआ मांगी है, जिस चीज़ के लिए भी दुआ मांगी है, वो पढ़ें। इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ कबूल होगी। आमीन सुम्मा आमीन। आपने वजीफ़ा पढ़ने का तरीका, मुहर्रमुल हराम में आपने ये 8 नवाफिल 2-2 करके पढ़ने हैं और उनकी नीयत वैसे ही करनी है जैसे आप नमाज की नीयत करते हैं। बस उसमें आपने नवाफिल का जिक्र करना है, यानी कि आपने 8 नवाफिल अदा करने हैं। नीयत वैसे ही करनी है जैसे आपने नमाज की नीयत करते हैं, बस नमाज की जगह आपने नफल लगा देने हैं। हर रकात में आपने सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। जब आप ये 8 नवाफिल अदा कर लेंगे तो फिर आपने खसूसी दुआ मांगी है जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया है। इंशाअल्लाह हर मकसद कबूल होगा। वैसे तो पूरा साल इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर मुहर्रम से इसकी इब्तिदा की जाए, एक और अमल बता रही हूँ। वैसे तो पूरा साल इस अमल को कर सकते हैं, अगर मुहर्रम में इसकी इब्तिदा की जाए तो इसकी कबूलियत और तासीर बढ़ जाती है। अमल यह है कि आपने 1 किलो गंदम या चावल ले लें, किसी छोटे बच्चे से उन चावल या गंदम की मुट्ठी भरवा लें और अलहदा किसी ट्रे या किसी बर्तन में रख लें।
बच्चे की मासूम मुट्ठी से तासीर बढ़ जाती है। ये वो हाथ हैं जो कभी नाफरमानी के लिए नहीं बढ़े। अब इसकी मुट्ठी चावल या गंदम के हर दाने पे लजाए कल्बी 200 उसके साथ 200 अल्लाह समद पढ़ें। एक ही निश्चित में पढ़ना है। घर के अफराद मिलकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इन चावल या गंदम को बाकी 1 किलो में मिक्स कर लें और साफ़ पानी जहाँ मछलियाँ हों वहाँ डाल दें। डालना सिर्फ साफ़ पानी में है, जैसे तालाब, नहर, समंदर, दरिया वगैरह। ये अमल 40, 70 या 90 दिन करना है। आप चाहें तो 2 दिन अशरा के दिन भी कर सकते हैं। यानी हर रोज़ 1 किलो चावल या गंदम की 1 मुट्ठी या ये पढ़ के चावलों में मिक्स करके पानी में मछलियों को डाल दें। ये अमल ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 किलो चावल ही लेने, आपकी जितनी इस्तात हो आप उतना ले सकते हैं। आपकी 1 पाव लेने की इस्तात है तो आप 1 पाव ले लें, आप थोड़े से ले लें। ये अमल हर नामुमकिन काम के लिए बेहतरीन है। औलाद ना होती हो, बेटी या बेटा चाहते हो, कैद से चाहते हो, अब वो गुनाहों की कैद से खुलासी हो या बद्दुआत की कैद से, जेल की कैद हो, किसी ऐप से छुटकारा चाहते हो, तकवा चाहते हो, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क चाहते हो, नशा छोड़ना चाहते हो, तंगदस्ती और गुर्बत से निजात चाहते हो, शादी ना होती हो, बस कोई भी दुनिया का कोई भी नामुकम्मल मसला हो, ये अमल बहुत तासीर है। अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी और के लिए भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये अमल, ये वजीफ़ा अच्छा लगा हो तो